I just want to know your like background and what you do. You deal with in what segments? What segments are overall you all are covering, right? So yeah. Okay, so can I hold it? Yeah, yeah, please. Okay, so we are dealing in the traditional and Indian wear segment. We are in this line since like past 30 years minimum. We are the fourth generation covering this, and our segments come from semi-stitched suits to saris to dupattas, stitched material, and also children wear. Children wear is our latest segment, and you can take over the rest. Explain the children wear segment. So basically, we have started our own brand, Kanchi. The Navratna is the existing brand for the sari, dupatta, dress material, kurtis, and everything. And Kanchi is a brand which is a sister company of Navratna, we can even say. So we originated from the Bandhani. What Bandhani is a product. Bandhani is a product. What a karigar does is he holds the fabric, a very pinch of fabric, and he dyes it. He runs it I around. understand. So it is a time-consuming process. village pattern that Village pattern, exactly. It's a time-consuming process. What basically happens is we get a raw material, we get a plain sari, we get this fabric, that too undyed. Fine, we get a white material, then we get this done on it. The weaving, embroidery, and everything, whatever we wanted. Lucknowi embroidery, Kanjivaram, whatever it is. Even the kalamkari. Then we give it to the karigar to make it a bandhani, the dots. Basically the dots. Then we give it to another karigar to dye it. This is a single dyeing pattern. We have double dyeing, we have shadings, we have different color combinations. And our speciality is the bandhani. How the more the small the dots are, the more it gives a grace. Fine. And the color dye. Usually what happens when we mix up two colors, that comes the black effect. काला पड़ जाता है वो बीच में से क्योंकि two different colors are coming, so it will, but obviously वो काला पड़ेगा. But what we do is we give a monochrome effect. Fine, so it's deep to light and then to a new shade. Yes, this is the thing, and then we have this as well. This is the Gajji silk fabric. So this is our speciality, and then it comes the shibori also. The bandhani with shibori. Shibori is the needle pattern. This. You see the small dots in it? This. And people usually thinks that shibori, the needle is मतलब खराब हो गया है, इसमें धागे क्यों हो रहे हैं, छेद हो रखा है, ये क्यों है? They don't understand the concept of shibori. शिबोरी का मतलब ही होता है उसके अंदर धागे का होंगे, छेद होएगा. You can see through. Yeah, I can see that. Yes. It is a see-through fabric. Yes. पूरा ट्रांजी रहेगा, निडल पैटर्न होता है ये. So that's our all of these handiwork, all of the handiwork are like a little declining industry. We don't want it to not exist anymore. It is the tradition of India, so we wanted to go forward with it. And you can see how bright it is. I mean, honestly, we've gone through the stalls, we've gone through the booths. Everything is so bright. The color we have in our India should continue, even in the export section, especially in the export section. So you guys basically borrow the fabrics and you design We on design. that. Right. So you guys are second generation of this business, We or are basically the generation. We are fifth now the gen? fifth Okay, generation. so you guys are the fifth generation. Yeah, the Okay, and your parents are like fourth generation. generation, they are Okay. So like how you see the transition from you the first generation to fifth generation? Starting was- Like how transition how rapidly it like given a new like innovation since the first generation, then second, third, fourth, and fifth. What are the basic like you can say the broad changes? Right. Not basic, the broad changes what you can see from first to fifth. Okay, so the starting was from the bandhani and the saris, because the first generation, obviously nobody wore suits in Jaipur or in India, major factors of India. The saris was what brought it together in the continuing pattern. Then the second generation switched to dupattas, like the smaller version of saris, because dupattas are usually worn on lehengas, and the brighter the color, the intrinsic the pattern, they work well with the lehengas. And then the third generation brought in the suit pieces, semi-stitched suit pieces. Like we have one here. And the semi-stitched suit pieces continued because it was very famous in Punjab. It was widely asked for, this bandhani pattern in Punjab as well. This is the dupatta. And these are unstitched top Unstitched and bottom pieces.
This is the material. And So then they get it stitched according to themselves. yes, It's a full suit. this transitioned into all of those ready-made material, and now the kids section. Okay. So, sir, I would like to say that your like company is in good hands, right? Basically, you guys are in your 20s, no? Yes. But you have they have a better good knowledge of textiles and all, right? So, yeah. So, our last question I would like to ask, like, how do you see this this event is gonna transform this textile business of India, basically? All right, so this is gonna promote exports a lot. People see, we recently found out that the Japanese people are very fond of bandhej, so they are continuously willing and looking for that. Right. It's a little proud moment for Indians, right? And then apart from that, the textile industry of India, the unstitched or just the cloth material, it's widely asked for. It can also transition into people asking for the children's material, like because it's so vibrant, so beautiful, and everybody wants to see their children looking lovely. So yeah, it's gonna transform like that. And Okay, one last question I have for you. Like, suppose you are an organizer for this event. So, what changes would you like to provide? I believe this exhibition was a well performed exhibition. There are huge number of booths, whereas huge number of participations as well. So the exhibition was well off. The thing is, the only change I would do is to segment it wise. I wanted apparel to be a whole different section, whereas it should be subdivided. Ethnic one side, western wear one side, traditional one side, kids wear one side. So it would give us more impact. More business could be turned out from it. That would be the one changes, and then home section should be a different one. You cannot mix the machinery industry with the home industries. That is the major difference that I took. But otherwise, it was a well-known exhibition. It is, I believe. And if I say about the time period or day period, so what did you suggest? Like, it should be of 2 days or 6 days, or this is good? no, okay. So the 4 days is fine considering how wide it was. See, if it was segmented well, then the buyers would go to the intended stalls. Right now, they are confused. They're looking forward. Then they're coming and asking, where can we find more of these? So if it was well segmented, 3 days would have sufficed as well. But then fourth was important to like make the buyer know where to come for the next day. So I have to see you both in the next event as a main or a head of this company, right? Okay. Thank you so much. Thank you meeting you guys. सो गुड आफ्टरनून और आप सभी का स्वागत है इस इतने बड़े इवेंट पे जहाँ लोग बहुत सारी कंपनीज मल्टीपल ग्लोबली कंपनीज आ रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, एक डील क्रैक कर रही हैं, ठीक है। तो एक जैसे हम देख सकते हैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट, जो भारत सरकार ने दिया है और जहाँ 3000 से भी ज़्यादा कंपनीज आ चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि विश्व भर में कहीं ऐसी कोई ऐसा इवेंट है जहाँ टेक्सटाइल कंपनीज इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद रही हों। तो सबसे पहले सर मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका जानना चाहूँगा। आप ज़रा एक बार अपना नाम और मेरा नाम दीपक मेहता है। बेसिकली हम लोग जोधपुर से बिलोंग करते हैं और अभी हमारा जयपुर में सीतापुरा में फैक्ट्री है। मैम अपना एक बार इंट्रोडक्शन। हेलो, मैं रश्मि मेहता हूँ और हमने अभी जयपुर में स्टार्टअप किया है मैन्युफैक्चरिंग का। हम लोग न्यू कमर्स हैं अभी देखा जाए तो, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ आके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और जो भी डील्स हो हैं हम बहुत अच्छी अच्छी डील्स भी क्रैक कर पाएँ। एंड थैंक यू सो भारत टेक्स्ट कि हमने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। तो जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक छोटा सा बैकग्राउंड आप बताइए, लाइक कैसे आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, आप इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे आए और आपकी कंपनी करती क्या है, ये ज़रा आप बताना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग पिछले 1.5 साल से हैं और वाइफ ने पहले बुटीक खोला था जोधपुर में। तो बुटीक में उनके प्रोडक्ट्स बहुत, जो इनके खुद की डिज़ाइनिंग थी बहुत अच्छी, उनको लाइकिंग मिलती थी और ख़ुद के प्रोडक्ट्स जो भी थे वो रुकते नहीं थे। तो फिर हमने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना अपन मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाएं, जो डिज़ाइंस इतनी अच्छी अपनी सेलेक्ट होती हैं और नो डाउट जो मैन्युफैक्चरिंग में भी आए तो काफ़ी अच्छा, इनकी खुद की डिज़ाइंस का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और यहाँ पे भी हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है।
तो मैम आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप के लिए जो ये प्लेटफॉर्म बना है बेसिकली स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो आप क्या देखते हैं इन 4 दिनों में, जो आज चौथा दिन है हमारा इस इवेंट का, तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा जैसे फ़ायदा हमारे स्टार्टअप्स को बेसिकली मिला है? जी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनको अपने आप को एक छोटी जगह से उठ के एक बाहर एक बड़े एक्सपोजर में आओ, आपको एक ना इंडिया के नहीं, इंडिया से बाहर के भी जो हैं वो भी आपको बायर्स मिलते हैं, तो बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव मिलता है उन सबको कि वो अपना कुछ कर सकें, अपना डिज़ाइंस हैं, अपने जो भी चीज़ें हैं अपनी ला सकें और सबको दिखा सकें कि हम ये हैं और ये चीज़ कर रहे हैं। तो जैसे देख पा रहा हूँ कि आप मोस्टली रेडीमेड गारमेंट्स के से डील करते हैं आप तो क्या आप बता सकते हैं जैसे जो फैब्रिक्स या जो फाइबर्स है या फैब्रिक्स हैं वो आप कहाँ से लाइक आप इंडिया में या कितने बड़े लाइक कह सकते हैं डीलर से या कहाँ से आप अरेंज करते हैं या इंपोर्ट करते हैं? तो रिक्वायर्ड होता है कि जैसा हमें जो गारमेंट रेडी करना होता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो करते हैं कि भाई हमें कहाँ से क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए और बेस्ट क्या चीज़ होनी चाहिए। और मोस्टली हम लोग जो है नेचुरल फैब्रिक्स में कॉटन में मोस्टली वही डील करते हैं हम। जो पॉली वगैरह है करते हैं हम, मतलब इन डिमांड है कि भी अगर कोई कहता है कि हमें दीजिए तो हम उनके लिए भी सोर्सिंग करते हैं, बट देखते हैं कि बेस्ट कहाँ से कोई चीज़ हमें सोर्स हो सकती है, हम वहीं से करने की कोशिश करते हैं। तो सर जैसे हमारी कल बात हुई थी हमारी यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल से, ठीक, मिसेस दर्शना जरदोश मैम, तो उनसे हमने इस बारे में पूछा था कि मैम क्या लगता है आगे के हमारे प्लान्स क्या हैं कि इस इवेंट को आप आगे कैसे ले जाना चाहेंगे, तो उन्होंने बड़ा प्यारा वो बताया था कि हम आगे और भी इम्प्रूवमेंट्स इसमें करना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लाना चाहेंगे ताकि बहुत सारे हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी जुड़ सकें। तो आपको क्या लगता है सर, अगर आप ऑर्गेनाइज़र होते इस पूरे इवेंट के तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं? बिल्कुल आप सबसे बड़ा तो ना, जैसे इंडियन कल्चर के हिसाब से अपन इस इवेंट को देखें हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने को फॉरेन बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। जनरल चीज़ें देखें तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और दूसरा जो बाहर की जो आउटडोर्स हैं अभी वो हैं, जनरल वाशरूम्स, टॉयलेट्स, ये भी सब जैसे फॉरेन बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना इनमें सब में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाए और थोड़ा सा एक स्मूथनेस आ जाए बायर को आने में जाने में, तो बायर बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए जी। बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि हर कोई चाहता है कि मुझे हर कुछ बड़ा ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एक बेसिक चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो अगर मिल जाए तो फिर बहुत स्मूथ हो जाएंगी चीज़ें सभी के लिए, हमारे लिए भी, एग्जिबिटर्स के लिए भी और विजिटर्स के लिए भी, जो भी आ रहा है। जैसे कई लोगों ने ये कहा हमसे, हमने जब पूछा कि ड्यूरेशन जो है ये 4 दिन का ड्यूरेशन आपको क्या लगता है कि कितना सही है कितना नहीं, तो कईयों ने कहा कि नहीं इसका ड्यूरेशन 2 दिन बहुत होता, 2 दिन होना चाहिए। कईयों ने कहा कि नहीं 4 दिन भी नहीं 6 दिन होना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट हाफ हमारा, पहले दिन का फर्स्ट हाफ वो आधा चला जाता है अरेंजमेंट करने में, आने जाने में। लास्ट डे का सेकेंड हाफ जो होता है वो सारा हमारा समेटने में, सारा पैकिंग में सारा चला जाता है। तो लोग कहते हैं कि 6 दिन और होना, तो आपकी क्या इस चीज़ में राय है, क्या होना चाहिए? 4 डेज आर इनफ। उसके लिए तो आपको एक दिन पहले आना पड़ता है। एक दिन पहले आके आप, जो हमने भी किया था तो स्टॉल पूरा सेटअप एक दिन पहले कर लिया था, और अब पैकअप में तो 2 घंटे लगने हैं मैक्सिमम, तो 6 बजे के बाद में पैकअप 2 घंटे में आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 4 डेज आर इनफ। एक लास्ट क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये इवेंट है आपको क्या लगता है कि ग्लोबली कितना बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि आज वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग हमसे, ये जो 4 दिन गया है इसके बाद जो यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं, वो बहुत सारे लोग इस चीज़ के मलाल में है कि हम नहीं जुड़ पाए, और शायद वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगले साल बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमसे जुड़ना चाहें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अगला साल हमारा आएगा, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज जो जुड़ेंगी, तो आपको लगता है कि ये जो स्टार्टअप्स हमारे हैं जिनको इस बार मौका मिला है, क्या उनके मौके कम हो जाएंगे, या आपका क्या कहना है इस चीज़? मौके कम नहीं होंगे, बहुत बड़ा एक्सपोजर है ये स्टार्टअप्स के लिए, क्या मैं तो कहूँ एवरीबडी के लिए। जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं, पहले से मौजूद हैं, उनको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। जो पहले से मौजूद नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपोजर है। आज मैं कहता हूँ हमसे नहीं करते 20 से 25 बायर्स हैं जो अब्रोड के जुड़े हैं, US, UK, कनाडा, ब्राज़ील,
तो ये एक्सपोजर हमको सभी के लिए खुली है, ऐसा नहीं कि खाली 1% के लिए, इसी के लिए अपॉर्चुनिटी जो भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी खुला है। और देखो अगले साल, इस साल इतना, अगले साल और ज़्यादा अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे होगा। तो सब एक तो देखने से सब चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम सर आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गजानन जी सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने बड़े इवेंट में आप हिस्सा बन पाए हो। और जैसे कि आई कैन सी कि आपका होम टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, तो क्या आप हमें आपकी कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे कि आपकी कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, आपके पास प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है? मेरा नाम गजानन शर्मा है और मैं को फाउंडर हूँ। वंदना हैंडीक्राफ्ट्स हमारी कंपनी का नाम है। बेसिकली हम लोग सीतापुरा जयपुर में, अच्छा, सीतापुरा जयपुर हम लोग ब्लॉक प्रिंट के मैन्युफैक्चर हैं। और ब्लॉक प्रिंट में हम लोग सभी आइटम बनाते हैं। ब्लॉक प्रिंट में होम फर्निशिंग्स, गारमेंट्स, एसेसरीज, बेबी वेडिंग, मेंस वियर, वुमेंस वियर, चिल्ड्रन वियर, और मोस्टली हमारा रेडी स्टॉकर्स काम होता है। तो हम लोग जैसे ब्लॉक प्रिंट में फैब्रिक्स वगैरह है तो हमारे पास 10-10 लाख मीटर कपड़ा रेडी स्टॉक रहता है, रॉ मटेरियल छपा हुआ। एग्जैक्टली क्या होता है, ब्लॉक प्रिंट का प्रोडक्शन स्पीड कम होती है तो हम लोग बड़े स्टॉक में काम करते हैं। बाकी हम लोग सारे आइटम बनाते हैं और हमारी कंपनी को करीब 14 साल हो गए इस लाइन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप एक्सपोर्ट भी करते होंगे? हमारे आपका कैसे एक्सपोर्ट चल का रहा भी है? काम है और डोमेस्टिक का भी काम है। और इस फेयर में हमको दोनों यही फ़ायदे मिले हैं कि जिस हॉल में हम आए हैं उसमें डोमेस्टिक के बायर हमें काफ़ी अट्रैक्टिव हमारे आइटमों से रहे हैं और काफ़ी हमारे पास क्यूरी भी है और बहुत अच्छा काम निकलेगा डोमेस्टिक का। डोमेस्टिक, बढ़िया। तो नेक्स्ट भी अगर ये भारत टेक्स हो रहा है तो आप जरूर आने वाले 100% होंगे? मतलब हम तो अभी ये बोल रहे थे कि भाई अगले के लिए हम लोग बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट में कम फोकस करते हैं, डोमेस्टिक में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। और डोमेस्टिक के बायर क्या स्टॉकर्स आते हैं, स्टोर्स वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, ये सब लोग आते हैं तो वो हमारी कलेक्शन देख के, हमारा स्टॉक देख के, मतलब हमारे छोटे ऑर्डर तो स्टॉक से ही पूरे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इन शॉर्ट मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भारत टेक्स आपके लिए काफ़ी बिल्कुल, अच्छा रहा। 100%, और 100%। नेक्स्ट ईयर का जो इवेंट होगा तो हम फिर से आपको मिलेंगे। मैं डेट देख के आया कि मार्च 2025 का। बहुत बढ़िया डेट नहीं आई, बाकी मैं कंफर्म हूँ कि मार्च में पक्का है। जी। थैंक यू सो मच, आपके साथ में बात करके काफ़ी अच्छा लगा। Thank you। और नेक्स्ट भारत टेक्स में हम ज़रूर आपसे बिल्कुल, मिलेंगे। 100%। थैंक यू सो मच, थैंक यू।